Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher from Layal Public School. So in our last class, we started this chapter, water, chapter number 5th of your geography textbook, and we have gone through the process. We have understand the concept of terrarium. After that, we have gone through the process of water cycle and salinity, etc., etc. And after that, we also talked about distribution of water bodies. So now our today's topic is ocean circulation. Circulation means movement. So there are different types of circulation. There are different movements of ocean. So there is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in oceans can broadly categorized as waves, tides, and current. So, if you have ever visited beach, then you like walk बेयर फीट, ठीक है, बिना चप्पल के, एकदम खाली बिना चप्पल के आपने क्या किया है, उस मिट्टी पे चलते हो, उस बीच के मिट्टी पे चलते हो, किनारों पे चलते हो. सी शोर क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज नेक्स्ट टू द सी, ठीक है, जो नदी ये ओशियन का समुद्र का किनारा होता है उसको हम सी शोर बोलते हैं. तो जब आपने कभी भी वहां पे ट्रेवल किया है तो जो वेट सैंड है, गीली मिट्टी होती है बीच की, जो ठंडी हवाएं चलती है, जो सी बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स सी के आसपास जो उनकी ब्यूटीफुल सी हमें साउंड सुनने को मिलती है, हमें देखने को मिलता है, जो सॉल्ट की स्मेल है. एज यू ऑल नो ओशियन हैज सॉल्ट कंटेंट, सोडियम क्लोराइड इन इट. तो जो सॉल्ट की स्मेल होती है, जो एयर है, एयर में वेव्स की जो आवाजें आती हैं, म्यूजिक आता है, सब कुछ कितना फैसिनेटिंग सा होता है, कितना सुंदर सा होता है, हैपनिंग सा होता है. फैसिनेटिंग मीन्स वेरी हैपनिंग. ओके, बट अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है, जो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लेक्स होते हैं, वो काफी वहां उस पे पानी ठहरा हुआ होता है, काफी काम सा होता है. तो उस जो ओशियन वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है. पॉन्ड्स और लेक्स में वाटर ठहरा हुआ होता है ना, बट ओशियन वाटर हमेशा मूव करता है. इट इज नेवर स्टिल, कभी भी स्टिल नहीं रहता है, कभी भी वो ठहरा हुआ नहीं रहता है. सो द मूवमेंट्स दैट ऑकर इन oceans can broadly be categorized as waves, tides and currents. हमने 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया हुआ है, वेव्स को, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स. ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन मूवमेंट्स को, ठीक है. So now there is a do you know box. We will talk about all these movements of ocean one by one elaborately. So before that, there is a do you know box given here. March 22 is celebrated as World Water Day, when the need to conserve water is reinforced in different ways. So March 22 मार्च को हर साल हम क्या करते हैं? We celebrate World Water Day, where various institutions, various organizations, various environmentalists encourage people to conserve water, and they tell us different ways through which we can conserve water. Okay, and it is important, as you all know, water is a very important part of our life, and it is a need of an hour to conserve water. So they every year we celebrate March 22 as World Water Day, through which we can get to know how we can conserve water. We took so many pledges, and we took so many steps to conserve water bodies. Okay, so now waves. So what are waves? First of all, just look at this do you know box. Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. So waves are formed when scrape means to interact, ठीक है, टकराना, ठीक है. स्क्रेप का मतलब होता है टू इंटरैक्ट, टू मीट, टू इंटरैक्ट.
जब वेव्स जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती है ओशियन सरफेस से टकराती हैं, मिलती हैं, ठीक है, उनसे इंटरैक्ट करती है, स्क्रैप करती है, द स्ट्रॉन्ग तो वेव्स की फॉर्मेशन होती है। जस्ट देखो ये जो है ये वेव्स है, ठीक है। जब विंड्स ओशियन सरफेस से टकराती है, इंटरैक्ट करती है, तो वेव्स की फॉर्मेशन होती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। और जितनी तेज आपकी विंड होगी, जितना तेज आपकी हवा आएगी, उतनी ही बड़ी आपकी वेव बनेगी, ठीक है। सो when you are playing throw ball on the beach and ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. So जब भी हम, अगर आपने कभी बीच ट्रैवल किया है एंड और इफ यू हैव एवर विजिटेड और maybe you have seen the scenes of beach in some of the movies, हम देखते हैं, खेलते हैं लोग वहां पे, पानी के पास बॉल वगैरह भी गिराते हैं, तो क्या होता है वो वाटर जो वो बॉल है पानी से धुल के वापस आपके पास आ जाता है। एंड इट इज लाइक वेरी इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, ठीक है, कैसे वो जाती है वापस वेव्स के साथ, वो बॉल है ना शी शोर पे आ जाती है, जो किनारों पे आ जाती है। सो when the water on the surface of the ocean rises, the falls alternatively. water क्या होता है, ocean surface का राइज होता है फिर फॉल होता है, राइज होता है और फिर फॉल होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। ओके, सो नाउ ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ठीक है, वेरी हैवी विंड, ठीक है, वेरी हैवी blowing of the wind. So during a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves, ठीक है। तूफान आता है या फिर बहुत तेज जब हवाएं चलती है, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही वेव्स जो है बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। ह्यूज मीन्स होता है वेरी बिग, वेरी लार्ज waves formed due to the very high speed of the winds. These may cause tremendous destructions. These may cause, tremendous means very heavy, very large, very in a tremendous amount, मतलब in very big amount का बहुत ज्यादा destruction होता है, damage होता है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. अर्थक्वेक हो गया, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है, सम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ठीक है, जब पानी के नीचे की जो जमीनें होती है वो क्या होती है, वो टूटने, ब्रेक होने लग जाती है, या फिर वोल्केनो एकदम इरप्ट होता है, या अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनके मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है, तो ओशियन वाटर में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। And as a result, a huge tidal wave called tsunami. What is tsunami? Tsunami is a Japanese word which means harbor waves. Harbor is the covering area or near the seashore. ठीक है, जिस वॉल से या फिर आसपास से जो भी एक लैंड बना हुआ होता है जिससे कवर किया हुआ होता है पूरे आपके सी एरिया को, ठीक है, जो बीच का एरिया होता है जिस वॉल से, तो उसको हम हार्बर बोलते हैं। तो सुनामी क्या है, सुनामी का मतलब होता है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज अ सुनामी, जब भी सुनामी आती है, जब भी इतनी बड़ी बड़ी जो वेव्स, टाइडल वेव्स आती है, तो इससे क्या होता है, वो हार्बर तक पहुंच जाती है, मतलब कि इतना दूर तक वो टाइडल वेव्स आती है जिससे कि काफी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसलिए ये जो वर्ड है सुनामी, हमने वर्ड यूज किया है। इट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, 15 मीटर तक लंबी जो है, ये 15 मीटर तक हाई इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। सो द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। जस्ट लुक एट द नंबर, जो अभी तक सबसे हाईएस्ट सुनामी मेजर की गई है वो है 150 मीटर। 150 मीटर की आपको जो है सुनामी वेव को अभी तक मेजर किया गया है। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। so, जो ये टाइडल वेव्स है 700 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड में पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है, ट्रैवल करती है, जाती है।
The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. What are coastal areas? Coastal areas are the land or the regions near the sea. जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, आपका तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये जो एरिया है, जो मुंबई वगैरह का एरिया है, गोवा, ये कोस्टल एरिया है क्योंकि ये पानी के आसपास का एरिया है. सो 2004 में इंडिया में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी जिससे कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था. जो भी आसपास का कोस्टल एरिया था, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, काफी नॉट कर्नाटका बट उस टाइम पे ये आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, आपका बे ऑफ बंगाल के साइड में तो आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, आपका केरला का कुछ पार्ट, तमिलनाडु, पुडुचेरी का कुछ पार्ट काफी डैमेज हो चुका था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. इंदिरा पॉइंट 2004 जो इंडिया का सबसे जो फर्दर मोस्ट पॉइंट था ना, लैंड का फर्दर मोस्ट पॉइंट जो था वो था इंदिरा पॉइंट, और वो सबमर्ज मतलब डूब जाना. ठीक है, तो वो ड्राउन हो चुका था सुनामी की वजह से. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपके बे ऑफ बंगाल में है, आपके सदर्न ईस्ट डायरेक्शन में है, और वहां पे इंदिरा पॉइंट क्या है, एक लाइट हाउस था. ठीक है, पहले लाइट हाउस यूज किया जाता था जिससे कि ओशियंस के पास लाइट हाउस बनते थे, जिससे कि कोई भी अगर ट्रैवल करता था तो उसे लाइट से पता चल जाता था कि यहाँ पे लैंड एरिया है. तो इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार का इंडिया का सबसे फर्दर मोस्ट पॉइंट था, अंडमान एंड निकोबार में था, और ये सबमर्ज हो गया था, डूब गया था सुनामी की वजह से, 2004 की सुनामी के वजह से. Okay, so now there is a box related to tsunami, the Earth's pandemonium. Now, what is the meaning of pandemonium? Pandemonium means wild and noisy disorder. ठीक है, wild and noisy disorder, एकदम बोलते हैं ना, एकदम कि शेर की धरार है, मतलब कि बहुत बड़ी आवाज आती है, बहुत ही लाउड नॉइजी, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉइस क्रिएट हो जाता है. तो सुनामी, द अर्थ पेंडेमोनियम, पूरा अर्थ में तहलका मच जाता है जब सुनामी आती है. तो so tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on 26th of December 2004. So the tsunami or the harbor wave struck havoc. Havoc means ऐसी सिचुएशन जहां पे बहुत सारा डैमेज होता है. इंडियन ओशन में काफी डैमेज हो चुका था. स्ट्रक मतलब होता है कि आप कहीं पे फंस जाते हो. तो इंडियन ओशन में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ऐसे तहलका मच गया था, बहुत ज्यादा ऐसे विनाश की स्थिति आ गई थी. ठीक है, बोलते हैं ना विनाश होने वाला है, तो हैवॉक इंग्लिश में विनाश को हम हैवॉक बोलते हैं. तो 26 दिसंबर 2004 को एक इंडियन ओशन में सुनामी आई. This wave was result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. ठीक है, ये जो वेव है ये किस वजह से आई थी, अर्थक्वेक. एपिसेंटर था आपका सुमात्रा, ये बर्मा में है. ठीक है, बर्मा मतलब कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है आपका सुमात्रा, वहां की वेस्टर्न बाउंड्री इसका एपिसेंटर था, जो मतलब मेन फोकस पॉइंट था, और इससे क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था. द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड था जिस रेट से आया था वो था 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल. इट इज वेरी हाई. ठीक है, 9.0 मतलब अगर 5-6 आता है वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, तो सोचो 9 तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. As the Indian plate went under the Burma plate, Burma मतलब मलेशिया के जो प्लेट है ना, प्रेजेंट डे म्यांमार की प्लेट जो है, अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, देयर आर सो मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन आवर अर्थ. तो उस प्लेट के अंदर क्या हो गया था, बर्मा प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट जो है चली गई थी. There was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. ठीक है, एकदम से सडन मूवमेंट हुआ था, सी मूवमेंट. तो इससे सी फ्लोर में क्या हुआ था, सी फ्लोर में सडन मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आया. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meters and tilted in a downwardly direction. जो ओशियन फ्लोर था वो डिस्प्लेस्ड हो चुका था, 10 to 20 मीटर्स तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया था और टिल्ट हो गया था. इससे वो झुकाव आ चुका था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो चुका था. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. तो बहुत सारे ऐसे गैप्स थे, लैंड एरियाज थे जहां पे ये ओशियन वाटर जो है गैप आने लग गया था, और इस वजह से लैंड में पानी जो है चल जाने लग गया.
This marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia. और इसी मूवमेंट के वजह से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपके अंडमान निकोबार में जो आपका इंदिरा पॉइंट में सबमर्ज हुआ, इसी वजह से हुआ था. So after thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. So after thrusting ऑफ द इंडियन प्लेट, थ्रस्टिंग मतलब जब बहुत आप फोर्सफुली किसी को पुश करते हो, जोर लगाते हो, तो ये जो इंडियन प्लेट एकदम से फोर्सफुली बर्मा प्लेट के नीचे आ गई थी, तो काफी सारा जो पानी है वो कोस्ट लाइन में आ गया था. सुनामी जो है किस स्पीड से ट्रेवल करके आ रही थी, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है सुनामी ट्रेवल करके आ रही थी. एंड बहुत सारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा जो है इसकी हाई स्पीड होती है, तो इसने बहुत सारे आइलैंड्स जो इंडियन ओशियंस के आइलैंड्स थे उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड. इंदिरा पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट था, जो लाइट हाउस था सदर्न अंडमान एंड निकोबार का, वो कंप्लीटली सबमर्ज हो चुका था, डूब चुका था. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. अब देखिए सुमात्रा से फिर जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आया, फिर श्रीलंका आया, तो ये वेव धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गई थी. 700 से 900 किलोमीटर की स्पीड से जो वेव्स आ रही थी, अब वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 kilometers. So from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakhs of houses in India. The worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands. So India में काफी 10,000 के अराउंड जो लोगों की डेथ हुई थी, more than lakhs of houses got disrupted, got affected. इंडिया के काफी लाखों घरों में बहुत नुकसान हुआ था. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये कुछ affected areas थे. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-4 hour notice of a potential tsunami. So such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. So earthquake को predict करना, पहले से ही पता लगा लेना कि अर्थक्वेक आने वाला है, बहुत ही मतलब इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, बहुत ही रेयरली होता है. 3 to 4 आवर्स का नोटिस फिर भी मिल सकता है सुनामी के केस में, बट एक्सक्यूज मी, बट ये जो केस है वो किस केस में है, हमें पैसिफिक ओशियन में जब सुनामी आती है तो हमें फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि इंडियन ओशियन में जो है ये जो सेस्मिक एक्टिविटीज है, अर्थ की जो मूवमेंट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट है, वो काफी कम है एज कंपेयर टू पैसिफिक. सो पैसिफिक में हमें फिर भी पता चल जाता है. सो ये जस्ट लुक एट दिस, तमिलनाडु कोस्ट में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके पिक्चर्स है, गिवन है कि सुनामी की वजह से 2004 के सुनामी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन आया था यहाँ पे. The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. अब ये जो सुनामी आई थी इससे काफी ravaged का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज. ठीक है, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट में काफी डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था. एंड ये जो डिस्ट्रक्टिंग सुनामी थी आपकी काफी मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के बाद आई थी, एंड इससे काफी लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत सारी प्रॉपर्टी में नुकसान हमें देखने को मिला था. और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि जो कोस्ट ड्वेलर्स हैं, द लैक ऑफ मॉनिटरिंग के वजह से लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और नॉलेज जो कोस्ट ड्वेलर्स जो आपके कोस्ट के पास जो हमारे रहते हैं, ड्वेलर्स रहते हैं इंडियन ओशन के, उनकी नॉलेज के लैकनेस की वजह से क्या होता है कि काफी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था.
The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from coastal regions, followed by destructive wave. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic waves struck. अब देखिए जब पहला इंडिकेशन आया सुनामी का, ठीक है, उस टाइम पे कि बहुत सारा पानी, रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, तो फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव कि ये जो वेव है डिस्ट्रक्ट कर देगी, डैमेज कर देगी। तो उस टाइम पे लोग जो है हाई ग्राउंड पे नहीं जा रहे थे, एकदम जो सेफ ग्राउंड थे वहां पे जाने की वजह से वो क्या करने लगे, उस कोस्ट में असेंबल होने लग गए, वो इकट्ठा होने लग गए थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे कोई मिरेकल होगा, कोई जादू होगा। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, एज अ रिजल्ट, देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स, और जो देखने वाले थे, जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हो चुके थे, उनका काफी मतलब उन्होंने काफी वहां पे स्ट्रक हो गए, उनकी वहां पे डेथ हो गई थी, ठीक है। मोर देन 10,000 पीपल जो है इस डिस्ट्रक्टिव वेव से उनकी डेथ हो चुकी थी। और देखिए वो मिरेकल, उनको लगा कि मिरेकल होगा, बट इन रियलिटी वो मिरेकल नहीं, वो एक डिस्ट्रक्शन था, नेचुरल डिजास्टर था, ठीक है। So this is all about today. In our next class we will discuss about tides and ocean currents. So go through this chapter, go through these topics, and if you face any problem, do let me know. Thank you so much for joining the class, everyone.